गेट बंद कर दो। हाँ जी, सो स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हाँ जी। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ when does the history begin ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ that is when the written sources became available ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੀ। ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਰੋਡੋਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਹਨਾ। ਸੋ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਸੀ? ਨੀਓਲਿਥਿਕ। ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ, ਸੁਖਮ ਪੱਥਰ ਕਾਲ ਤੇ ਮਹਾ ਪੱਥਰ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮ ਪੱਥਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਹੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ that is ਪੂਰਾ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ, ਨਵ ਪਾਸ਼ਾਣ ਕਾਲ, ਸੁਖਮ ਪੱਥਰ ਕਾਲ ਤੇ ਮਹਾ ਪੱਥਰ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਲਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਨੀਓਲਿਥਿਕ, ਮਾਈਕਰੋਲਿਥਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਾਲਿਥਿਕ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਪਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਸਾ ਯੁਗੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਹਨਾ। ਕਾਂਸਾ ਯੁਗੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਾਪਰ ਪਲੱਸ ਟਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਪਰ ਦੇ ਟਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ 93rd। ਸੋ ਵੇਅਰ ਰਾਈਸ ਵਾਸ ਫਰਸਟ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਯੂਰਪ ਉਹ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ। ਯੂਰਪ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IMF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। IMF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਮਹਾਦੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਈਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਈਸ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਰਾਈਸ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਗ ਬਾਉਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਐਗ ਬਾਉਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬਾਉਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਗ ਬਾਉਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ 94, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਗਭਗ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ? 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750 BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਦਿਕ ਏਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਪੀਰੀਅਡ।
सो देखो दूसरा शहरीकरण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਜਨਪਦ ਪੀਰੀਅਡ ਹਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਜਨਪਦ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਹਾਜਨਪਦ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਜਨਪਦ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ 2500 ਤੋਂ 1750। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ 2500 ਹਨਾ। ਸੋ 2500 ਤੋਂ 1750 ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2500 लगाना है मतलब इंडस वैली लगाना है फर्स्ट अर्बनाइजेशन। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेकंड अर्बनाइजेशन ਪੁੱਛਣ दूसरा शहरीकरण ਤਾਂ ਆਪਾਂ महाजनपद पीरियड लगाना है। जे पहला ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ इंडस वैली लगाना। क्लियर है। सो ये ध्यान रख। सो आंसर होगा जी अपना ए ऑप्शन। क्लियर है जी। हाँ जी चलिए नैक्सट क्वेश्चन ते अगला क्वेश्चन अपना आया सी 95th भारत विच पहली राज प्रणाली किहड़े खेत्र विच बनी सी। भी फर्स्ट स्टेट सिस्टम भी पहली बार स्टेट्स आपां नूं कित्थे बनदे दिखे सी कावेरी नदी नर्मदा ऑल ऑफ दीज या गंगा यमुना दोआब। सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बहुत ईजिली तुसीं आंसर दे सकते हो क्योंकि जदों इंडिया दे विच आपां पढ़दे हां वैदिक काल। सो वैदिक काल दे विच इंडिया च कौन रूल कर रहे थे उस टाइम आर्यंस है ना। ਤੇ ਆਰੀਅਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰੀਅਨਸ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੁਆਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। कावेरी नर्मदा उस टाइम तो इन्हां नदियां बारे आपां नूं पता ही नहीं सी महाजनपद काल दे विच आपां नूं सिर्फ उत्तर भारत दी नदियां पता सी है ना। सो आंसर की होगा जी डी ऑप्शन। सो ये गल कित्थे दी है कदों दी है जदों इंडिया दे विच की बनदे जी महाजनपद ते महाजनपद इंडिया टोटल उस टाइम किन्ने बनदे हैं 16। क्लीयर है 16 महाजनपद ते 16 महाजनपद दे विचों जिहड़ा सब तो पावरफुल महाजनपद हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है जी मगध। ते मगध ते पहला वंश किहड़ा आंदा है हरियंक वंश है ना। हरियंक वंश तो बाद किहड़ा आंदा जी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ते शिशुनाग वंश तो बाद किहड़ा आंदा है नंदा वंश है ना। नंद वंश दा आखिरी राजा कौन सी धनानंद। धनानंद दे टाइम च किन्ने हमला कीता सी सिकंदर ने अलेक्जेंडर ने है ना। धनानंद नूं किन्ने हराया सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने केड़ा वंश फिर एस्टैब्लिश किया सी मौर्य वंश। ठीक है जी। सो सारी इंफॉर्मेशन तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हां चीज़ां नूं तुसीं नाल नाल नोट कर लो। ठीक है सो इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी की जे आपां गल करिए नर्मदा नदी नूं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है जोग्राफी च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंदा है भी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किनू कहने नर्मदा नदी नूं। ठीक है जी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन आया सी 96 कहते अशोक दे धम की सी। अशोक दा धम की सी प्रिंसीपल ऑफ गुड कंडक्ट चंगे आचरण का सिद्धांत एक विचारधारा सम्राट अशोक वालों प्रसारित विचारां दा एक समूह या फिर ये सारे। हाँ जी ये तुसी दसो भी अशोक दा धम की सीगा। सो अशोक ने है ना अपन पता भी अशोक ने जिहड़ा धर्म अपनाया सी वो किहड़ा धर्म सी अशोक दा बुद्धिज्म है ना। सो अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया सी कलिंग की लड़ाई तो बाद है ना। सो कलिंग की जिहड़ी लड़ाई सी बहुत इंपॉर्टेंट सी। कलिंग की लड़ाई तो बाद अशोक बुद्ध धर्म अपना लैंदा है ते धर्म का प्रचार करता है। सो अशोक धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म की स्थापना करता है। उस धम्म दे विच सारा कुछ ही हुंदा सी। सो अपना आंसर है जी डी ऑप्शन दैट इज ए सारे। जिहदे विच चंगे आचरण का सिद्धांत उन्हें दिता सी धम्म एक विचारधारा सी ते सम्राट अशोक वालों प्रसारित विचारां दा एक समूह सी। तो सारियां चीज़ां इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ते अशोक भी अपना किहड़े वंश का राजा सी मौर्य वंश का। सो मौर्य वंश की खास गल यह है भी मौर्य वंश का जिहड़ा संस्थापक है वो कौन सी चंद्रगुप्त मौर्य। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने किहड़ा धर्म अपनाया सी जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुंदा जी बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार ने दूसरा धर्म अपनाया सी वो धर्म किहड़ा सी आजीविका।
ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਸ਼ੋਕ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ? ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਚੰद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीविका अपनाया, अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है। कलिंग की लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कदों हुई सी? 261 BC दे विच अशोक दी। ठीक है, इस लड़ाई तो बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन होंदा ते वो बुद्ध धर्म अपना लैंदा। क्लीयर है? सो आंसर होगा जी अपना डी ऑप्शन ए सारे। नैक्सट क्वेश्चन देखो। सो अगला क्वेश्चन अपना की आया इस एग्जाम च। सो अगला क्वेश्चन आया सी, कहंदे हु वाज प्लाइनी। सो प्लाइनी कौन सी? एक कवि जिसने भारत के इतिहास उत्ते लिखिया, कहंदे एक योद्धा राजा जिहड़ा अफगानिस्तान विच वस रहा सी, एक रोमन विद्वान जिसने भारत नूं रोमन साम्राज्य दे नाल वपार करन वाले एक वपारक देश वजों जिक्र किया। बिल्कुल, सो यह ऑप्शन ही ठीक है। सो एक रोमन विद्वान सी जिसने भारत नूं रोमन साम्राज्य दे नाल वपार करन वाले एक वपारक देश वजों जिक्र किया। सो सी ऑप्शन इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा प्लाइनी बारे। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर की है जी? सी ऑप्शन। नैक्सट देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आया सी 98, राजा हर्ष का साम्राज्य फैलिया होया सी। सो हर्ष का साम्राज्य कित्थे तक फैलिया सी? आपां पढ़ते हैं। दक्षिणी समुंदर तो उत्तरी पहाड़ा तक का इलाका नहीं, वो दक्षिण वाल तो हले गया ही नहीं सी, जदों जांदा है ना पुलाकेशिन टू उहनूं हरा दिंदा है। फिर की है? पश्चिमी सागर तो पूर्वी समुंदर तक। हाँ जी, सो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी सागर तो पूर्वी समुंदर तक फैलिया होया सी, यानी कि वैसटर्न सी टू ईस्टर्न सी, इत्थे तक हुंदा सी अशोक दा साम्राज। सो अशोक कोल एक बहुत हर्ष दा साम्राज। सो हर्ष कोल एक बहुत बड़ा साम्राज हुंदा सी, हर्षवर्धन। ਇਹਦਾ पूरा नाम की है जी? हर्षवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर्षवर्धन किहड़े वंश का राजा हुंदा सी? सो ਇਹਦਾ वंश है जी, वंश किहड़ा सी ਇਹਦਾ? वर्धान वंश, है ना, वर्धान डायनेस्टी, या फिर इन्हों आप कह दें पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अशोक का फिर आपको कोट पॉइंट पूछे आंदा है भी ਉਹਦਾ दरबारी कौन सी? अशोक का दरबारी सी जी बाणभट्ट, है ना। बाणभट्ट ने केड़ी बुक लिखी सी? बाणभट्ट ने एक बुक लिखी सी जिसका नाम है हर्षचरितम। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है। अशोक ने खुद केड़ी बुक्स लिखियां सी? सो अशोक ने रत्नावली बुक लिखी सी, नागनंदा बुक लिखी सी, प्रियदर्शिका बुक लिखी सी। ठीक है, आ तीनों नाटक जिहड़े सीगे हर्षवर्धन ने खुद लिखे सी। सो जिहड़ी बाणभट्ट ने लिखी सी वो हर्षचरितम सी, हर्ष दे उत्ते, लेकिन जिहड़ी हर्ष ने खुद लिखी सी वो किहड़ी सी? रत्नावली, नागनंदा ते प्रियदर्शिका। ते हर्षवर्धन ने किनू अपनी कैपिटल बनाया सी? इन्हें कैपिटल बनाया सी अपनी कन्नौज नू। वेरी इंपॉर्टेंट। ते बेसिकली बिलोंग कित्थों करते सी? थानेसर तो। थानेसर कित्थे है जी? हरियाणा, लेकिन बाद दे विच अपनी कन्नौज नू कैपिटल बना लैंदा। क्लीयर है? सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिहड़े आपां याद रखने किहदे बारे? हर्षवर्धन बारे। ठीक है जी, हर्षवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो नैक्सट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन अपन आया सी भी प्राचीन भारत के हेठले विद्वानां विच की समान सी। भी एक विद्वानां दे नाम दसे गए तो इन्हां च आपां कॉमन चीज दसनी है, समानता दसनी है। देखो जिहड़ा पहला की है अपस्तंभा। अपस्तंभा कौन सी? इन्हां नूं मैथ बारे बहुत नॉलेज सी। बौद्धियन कौन सी? ये भी मैथ नाल रिलेटेड सी। तीसरे कौन है? कत्यायन। इन्हां नूं भी मैथ बारे नॉलेज सी। मानव भी मैथमैटिशियन सी, लेकिन पाणिनी है मैथमैटिशियन नहीं सी। इन्हां नूं संस्कृत की नॉलेज सी, है ना। संस्कृत ग्रामर के उत्ते इन्हां ने बुक लिखी सी पाणिनी ने, ਉਹਦਾ नाम की सी? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी बुक लिखी सी। पिंगला या फिर यज्ञवल्का, यज्ञवल्का, ये भी सारे मैथ नाल रिलेटेड सी। सो देखो मैनू ये क्वेश्चन एग्जाम दे विच गलत लग्या, क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो मैथ दे नाल रिलेटेड है, लेकिन पाणिनी संस्कृत ग्रामर दे नाल बेस्ड है। सो इत्थे अपने कोल ऑप्शंस मैथ भी है ते ग्रामर भी है। सो मेरे हिसाब नाल तां बी ते डी दोनों आंसर इहदे सही है। ठीक है जी, लेकिन आप एक दसना सी, एक आप दस नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन ही गलत आपां नूं दित्तियां गईयां सी एग्जाम दे विच। ठीक है जी।
सो ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣਿਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 100 ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਗੁਲਾਮ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ऑप्शंस की है, इकला परिवार जिसने अपनी गुलामी तो आजादी प्राप्त की थी, या फिर अनगिनत परिवार जिन्हां दे संस्थापक राजे दी सेवा विच एक गुलाम सिपाही सन, या फिर भारती हाकमां दे गुलाम या ऊपर वाले विचों कोई नहीं। हाँ जी, सो स्लेव डायनेस्टी ते आपां नूं क्वेश्चन पूछा गया, आपां ये दसना है भी इस क्वेश्चन का सही आंसर की होगा। हाँ जी, सो स्लेव डायनेस्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਸਲੇਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਲੇਵ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਲੇਵ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਸੋ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸਲੇਵ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ, ਹਨਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਹਨਾ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਲੇਵ डायनेस्टी। क्लियर है, सो आंसर है अपना बी ऑप्शन, ठीक है जी। सो स्लेव डायनेस्टी की गल आपां कित्थे करदे हैं, जदों आपां पढ़दे हैं किन्हां बारे, जदों आपां दिल्ली सल्तनत पीरियड बारे पढ़दे हैं। ते दिल्ली सल्तनत पीरियड अपना कदों शुरू होया सी, दिल्ली सल्तनत पीरियड अपना शुरू होया सी 1206 दे विच, ते कदों खत्म हो जांदा है 1526 दे विच। 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼। ਚੌਥਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਫਿਰ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ सो क्लियर है क्वेश्चन, तो अपना आंसर होगा जी ਇਹਦਾ सेकंड ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਸੋ ਨਾਲ अपने स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू। सो कहते बुलंद दरवाजा किस लिए बनाया गया ਸੀ, आगरा ਦੇ सिंहासन ਤੇ वारिस ਦੇ जन्म ਦਾ जश्न मनाउण ਲਈ नहीं, गुजरात की जित की याद विच। बिल्कुल ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुजरात की जित की याद दे विच, है ना। सो गुजरात की जित ये अकबर जितदा है ना, अकबर की गल हो रही है। सो अकबर ने गुजरात की जिहड़ी लड़ाई लड़ी सी ये कदों लड़ी सी 1572 दे विच, ठीक है। सो गुजरात की जित की खुशी दे विच अकबर की करदा है, बुलंद दरवाजा बनांदा है। कित्थे बनवांदा है जी, फतेहपुर सिकरी दे विच, है ना। सो फतेहपुर सिकरी दे विच बनांदा है, फतेहपुर सिकरी दे विचों बुलंद दरवाजे का निर्माण करांदा है जो कि यूपी दे विच। वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब तो पहला तो शहर भी पूछा जांदा आपां नूं भी फतेहपुर सिकरी शहर किन्ने बसाया, अकबर ने। फिर उत्थे बुलंद दरवाजा किन्ने बनाया, है ना, अकबर ने। सो इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट मुगल राजा सी अकबर, है ना। सो अकबर बारे आपां याद रखते हैं 1556 दे विच अकबर ने लड़ी सी सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई इन्हें लड़ी सी। उस तो बाद 1572 दे विच अकबर ने किहड़ी लड़ाई लड़ी सी, गुजरात की, ठीक है। फिर 1576 दे विच अकबर ने किहड़ी लड़ाई लड़ी सी, हल्दी घाटी की लड़ाई, जिहदे विच महाराणा प्रताप नूं हराया सी, ठीक है जी। सो ये सारियां अकबर दीयां लड़ाइयां आपां इंपॉर्टेंट है, ये याद रख, ठीक है जी।
सो गुजरात, गुजरात की कैपिटल की है जी गांधीनगर। गांधीनगर किहड़ी नदी के किनारे है? ये साबरमती नदी के किनारे। ठीक है जी। गुजरात बारे आपां नूं होर क्वेश्चन आंदा है, गुजरात की की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, है ना, सब तो वड्डी तट रेखा, ये भी याद रखना है, सब तो वड्डी जिहड़ी अपनी तट रेखा है वो भी किहदी है? गुजरात दी है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अर्श संधू बिल्कुल ठीक है जी, बी आंसर, वेरी गुड। सो चलिए फिर अगले क्वेश्चन ते देखते हैं अगले क्वेश्चन का अपना आंसर की होगा। सो अगला क्वेश्चन अपन आया सी द नेम ऑफ द रीजेंट हु रीनड फॉर अकबर वाज। सो अकबर दे लई राज करन वाले राजे दा नाम की सी? सो जेड़ा अकबर दे शुरुआती दिनां दे विच अकबर दा गार्जियन इन्हां नूं आपां बोल दिंने आ, सो कौन सी? हुमायूं, बाबर, बैरम खान या सलीम? सो बिल्कुल अपन नूं क्लियर है, दा आंसर सीगा जी बैरम खान। सो बैरम खान कौन सी? हुमायूं दा सॉरी अकबर दा गार्जियन, क्योंकि जदों अकबर राजा बनया सी अकबर बहुत छोटा हुंदा सी, है ना। सो गार्जियन ओदा संरक्षक कौन सी? वो सीगा जी बैरम खान। सो इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बैरम खान। सो अगेन अपन अकबर के क्वेश्चन आए सी, अकबर बारे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। 1556 विच राजा बनया, 1605 विच अकबर की डेथ हुई। अकबर का अपन मकबरा पूछ लेंदे जी, वो किथे है जी? सिकंदरा दे विच, है ना, सिकंदरा, वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं, हुमायूं के उत्ते एक बुक लिखी गई सी जिहदा नाम है जी हुमायूं नामा। सो हुमायूं नामा बुक नूं किहने लिखिया सी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन सी? ये अकबर दी सॉरी हुमायूं दी सिस्टर सी। ठीक है, गुलबदन बेगम। सो इंपॉर्टेंट है, तो जिहड़ा हुमायूं दा मकबरा है वो किथे? अपना दिल्ली दे विच, है ना। सो दिल्ली दे विच हुमायूं दा मकबरा है। बाबर कौन है जी? बाबर है जी अपना फाउंडर, संस्थापक, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, है ना। सो मुगल वंश का इंडिया दे विच संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी जीवनी भी लिखी सी जिसका नाम है जी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, है ना। तुजुक ए बाबरी इहदी की है ऑटोबायोग्राफी, है ना, जो बाबर ने लिखी सी अपनी आत्मकथा, इंपॉर्टेंट है। 1526 दे विच बाबर ने लड़ाई लड़ी सी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। 1526 दे विच इन्हें लड़ी सी बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, 1527 दे विच इन्हें लड़ी सी बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, ते 27 दे विच लड़ी सी बैटल ऑफ खानवा, 28 दे विच लड़ी सी बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 दे विच लड़ी सी बैटल ऑफ घाघरा, ते 1530 दे विच की हुंदा है? इहदी डेथ हो जाती। ठीक है, सो शुरुआत दे विच इहनूं आगरा दे विच दफनाया जाता है, लेकिन बाद दे विच इहदी डैड बॉडी नूं आराम बाग काबुल दे विच दफना दिंदे हैं। ते आपां याद रखना है भी काबुल दे विच ही बाबर दा की बने? मकबरा बने। ठीक है जी, सो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी, आ सारी चीज़ां भी तुसीं नोट करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है, क्लियर है। सो अपना आंसर होगा जी सी ऑप्शन। चलो सो चलिए फिर नैक्सट क्वेश्चन ते, है ना। सो इन्हां चीज़ां नूं नाल नाल नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लै सकते हो। ठीक है, ये तुहाडे आउण वाले पेपरां दे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहणगे। सैशन नूं शेयर कर दो। ठीक है, सैशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, तो सैशन के खत्म होने तो बाद अपने कमेंट्स भी जरूर सारे ने दसने हैं। ठीक है जी, सो देखते हैं फिर अपना नैक्सट क्वेश्चन की है। सो अगला क्वेश्चन है जी 103 जो अपना क्वेश्चन सी पंजाबी च आपां पढ़ते हैं की सी। कहते जो गेटवे ऑफ इंडिया सी, इंडिया गेट है ते 3 मूर्ति बनाए गए सी, क्यों बनाए गए? क्रमवार आपां दसना है। सो पहला की है क्रमवार जॉर्ज पंजवें का स्वागत करने लई, ये तो बिल्कुल ठीक है भी गेटवे ऑफ इंडिया का स्वागत जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज 5 कौन सी? ब्रिटेन का महाराजा, ਉਹਦੇ स्वागत करने लई बनाया गया सी, बिल्कुल ठीक है। इंडिया गेट कहते भारतीय फौजा की जंगी मौतां का सन्मान करने लई बनाया गया सी, ये भी ऑप्शन अपनी बिल्कुल ठीक है। सो भारतीय फौजां जिहड़ी जंगी मौतां का सन्मान करने दे लई इन्हां लई बनाया गया सी अपना इंडिया गेट। ते 3 मूर्ति बनाया गया सी पहले विश्व युद्ध विच होईयां मौतां लई, ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो इस तरीके नाल अपना आंसर की हो जाऊगा जी ए ऑप्शन। ते गेटवे ऑफ इंडिया अपना है किथे? गेटवे ऑफ इंडिया जी अपना मुंबई दे विच। ठीक है,
इंडिया गेट अपना किथे है, इंडिया गेट अपना दिल्ली च है, सो ये आपां याद रखना है। ते तीन मूर्ति जिहड़ी बनाई गई सी पहले विश्व युद्ध विच होईयां मौतां दे लई बनाई गई सी। सो पहला विश्व युद्ध अपना कदों होया सी 1914 दे विच, ठीक है। 1914 तो लैके 1918 तक अपना चलिया सी फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। देन उस तो बाद सैकेंड वर्ल्ड वार हुई सी, दूसरा विश्व युद्ध होया सी कदों होया सी 1939 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरा होया सी, ठीक है। सो ये भी ਆਪਾਂ याद रखना, क्लियर है। सो अपना आंसर हो जाएगा जी ए ऑप्शन, क्लियर है जी। हाँ जी, सो चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते देखते अपना अगला क्वेश्चन की सी। सो अगला क्वेश्चन अपन ਨੂੰ आया सी मुगल साम्राज्य प्रणाली की ताकत किस विच सी। इस दे कठोर कानून नहीं, कठोर कानून दे विच मुगल साम्राज्य प्रणाली की ताकत अपन ਨੂੰ नहीं दिखती। मनसबदारी सिस्टम, हाँ जी, सो यही बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मनसबदारी सिस्टम। सो मनसबदारी सिस्टम भी कौन लेके आंदा है, अकबर लेके आंदा है। सो मनसबदारी सिस्टम अकबर किहदे लई लेके आंदा है, अपनी आर्मी दे लई। सो ये की करदा है, इहदे विच अपनी आर्मी नूं रैंक देने शुरू करदा है ना, रैंक, रैंक नूं उस टाइम कहंदे सी जी मनसब। सो रैंक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਸਬ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, दैट इज ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। उस तो इलावा अकबर के दरबार दे विच नवरत्न भी हुंदे सी, है ना, नवरत्न भी सीगे, जिहदे विचों दी इंपॉर्टेंट सीगे जी अपने बीरबल, है ना। बीरबल इन्ने दे की सी प्राइम मिनिस्टर। एक आपां नूं बीरबल दा पुछिया जांदा भी बीरबल दा रियल नेम की सी। सो बीरबल दा रियल नेम सी महेश दास, ठीक है जी। इस तो इलावा टोडरमल सी, टोडरमल, टोडरमल कौन सी, सो टोडरमल सीगे इन्हां दे फाइनांस मिनिस्टर, अकबर दे फाइनांस मिनिस्टर। ते टोडरमल उस टाइम एक नवा टैक्स सिस्टम लैके आंदे हैं जिन्हों आपां कहने हैं जप्ती सिस्टम। सो जप्ती सिस्टम कौन लैके आंदा है, टोडरमल, या फिर इन्हों आपां बोल दिंदे हैं टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त भी इन्हों आपां बोल दिंदे हैं, ठीक है जी। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट सी, उन्हां दा नाम सी अबुल फजल। अबुल फजल पोइट सी। अबुल फजल एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखदा है, उसका नाम है आईने अकबरी, है ना। सो अकबर दे उत्ते अकबर दी जीवनी लिखदा है जिहदा नाम है अकबरनामा या फिर आईने अकबरी, क्लियर है। सो ये भी चीज आपां याद रखनी है रिगार्डिंग अकबर, क्लियर है जी। सो अपना आंसर होगा बी ऑप्शन मनसबदारी सिस्टम। चलो, सो आई थिंक तुहानू आंसर क्लियर है। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन अपन नूं आया सी भी सिंह सभा लहर मोटे तौर ते कदों शुरू हुई सी, 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी। सो इहदे विच आपां याद ही रखना है सिंह सभा जिहड़ी मूवमेंट है, सिंह सभा लहर है जिहड़ी गुरुद्वारियां लई चली सी जो, वो शुरू हुई सी 19वीं सदी दे विच, क्लियर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन 19वीं सदी। अगला अपन क्वेश्चन है 106वां, कहंदे हेठ लिखे दे विच सही क्रम की पहचान करो। बस आपां गुरु जिहड़े है अपने उन्हां नूं सही क्रम दे विच लगाना है। सो पहले दिते हैं हरकृष्ण हर राय हरगोबिंद, दूसरे अंगद जी गुरु हरगोबिंद अमरदास, है ना, ये अपनी गलत होगी, ये भी अपनी गलत होगी। तीसरी केड़ी है, गुरु नानक अंगद हरगोबिंद, यही इकलौती अपने कोल सही ऑप्शन है ना, क्योंकि गुरु नानक जी अपने पहले गुरु सी, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु सी, ते हरगोबिंद किन्नवें सी, ये दसो। हरगोबिंद, हरगोबिंद जी अपने 6वें गुरु सी, है ना। सो आप याद रखना है, आप क्रम दे विच लगाना सी। सो आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी ते गुरु हरगोबिंद। ते गुरु अंगद देव जी का रियल नेम की सी, भाई लैणा, है ना, भाई लैणा इन्हां दा रियल नेम सी, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है ना, आप सही क्रम दे विच लगाना सी। सो इको ही ऑप्शन अपने कोल सही है। सो सी ऑप्शन अपना की हो जाएगा आंसर। सो अगला क्वेश्चन अपन आया सी कि फकीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम
ਤੇ ਕਲਾਉਡ ਅਗਸਟੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁद्दीन, ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ, ਕਲਾਉਡ ਅਗਸਟੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूसरा की महाराजा रणजीत सिंह जी के कर्मचारी सी। वेरी गुड, हाँ जी, सो यही अपना सही आंसर होगा। ये सारे महाराजा रणजीत सिंह जी के कर्मचारी सन। की नाम से इन्हां दा? फकीर अजीजुद्दीन, दीवान मोतीराम ते क्लाउडे अगस्ट कोट। ये सारे अपने महाराजा रणजीत सिंह जी के कर्मचारी सन। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है जी? चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते। सो अगला अपना क्वेश्चन आया सी, कहंदे जदों सरकार नूं उन्हां रीति रिवाजां दा सामना करना पिया जो उस वेले बनाए गए कानूनां तो वखरे सन, उसने उन्हां नूं रिवायती कानून दे नां हेठ मौजूद रहन दिता। कहंदे इत्थे कस्टम नूं इस तरह परिभाषित किया गया। ठीक है, सो कहंदे कस्टम जिहड़ा वर्ड है उहदा मतलब की सी? कहंदे कुछ ऐजा जिहड़ा आदम काल तो प्रचलित सी, या कहंदे एक ऐजी प्रथा जिस विच समाजिक एकता सी, एक ऐजा विश्वास जिसनूं खापा दी हिमायत हासिल सी, ये एक ऐजी प्रथा जिन्हों लोकां दे इतिहास दा हिस्सा सी। सो कस्टम्स आपां किन्हां नूं बोलदे हैं? कस्टम्स या फिर ट्रेडिशंस आपां उन्हां चीज़ां नूं बोलदे हैं कुछ ऐजा जिहड़ा आदम काल तो प्रचलित है। यानी कि इंग्लिश दे विच आपां पढ़दे हैं, यानी कि समथिंग दैट हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इममोरियल, है ना, जिहड़ी बहुत लंबे सालां तो चली आ रही है चीज़ है। इन्हां नूं आपां की बोलदे हैं? रिवायती कानून या फिर कस्टम्स। सो आपां नूं कस्टम दा मतलब पूछे, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, ये चीज़ां बहुत पुराने समय तो चली आ रही है। सो आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन देखो, अपन आया सी 109वां। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। सो अगला क्वेश्चन आया सी, कहंदे 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ भी कहा जाता है। ठीक है, सो दो नाम है, एक तो इन्हूं सिपॉय म्यूटिनी कह देंगे है ना, सिपॉय म्यूटिनी, ते दूसरा कहते हैं आजादी की पहली जंग भी कह देंगे, दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सो ये कहा जाता है 1857 की विद्रोह नूं। सो कहते घटनावां दे एक समूह लई इन्हां वख-वख नावां दा महत्व की सी? सो कहते ये वख-वख जिहड़े आपां नाम दिते, इहनूं नाम दिते, उहदा की महत्व है? सो पहला कहते कि है इन्हां समागमां दे मुख कलाकारां दी पछाण करनी, नहीं। दूसरा क्या, भारतीय लोकां विच बस्तीवाद विरोधी दी डिग्री नूं मापण दे लई, नहीं जी। तीसरा है वक्खो-वक्ख नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। सही गल है ना, क्योंकि वक्ख-वक्ख सारिਆਂ ਦੇ लड़न ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, सिपाहियां ਦੇ अलग ਕਾਰਨ ਸੀ, है ना, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। सो इसे करके वक्ख-वक्ख नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵੀਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ? 1857 ਦੀ क्रांति। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਪੋਏ ਮਿਊਟਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा जी सी ऑप्शन। चलो, आई होप तुहानू क्वेश्चन क्लीयर है। चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते देखदा आपां नू अगला क्वेश्चन की आया सी। सो अगला क्वेश्चन आपां नू आया सी 110वां क्वेश्चन सी, कहंदे जवाहर लाल नेहरू दी मौत तो बाद मौत ते प्रधानमंत्री वजों किसने ओहदा संभालिया? ठीक है, सो जदों जवाहर लाल नेहरू जी दी मौत हो गई सी, सो उस तो बाद प्रधानमंत्री कौन बने सी? गुलजारी लाल नंदा, मुरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। सो आपां नूं बिल्कुल क्लीयर है, जिहड़े जवाहर लाल नेहरू सी उन्हां तो बाद कौन बनते हैं? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, एक्टिंग में बनते हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इंपॉर्टेंट है गुलजारी लाल नंदा। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किन्ना तो बाद बनते हैं? जवाहर लाल नेहरू की जदों डेथ होंदी है। ते जवाहर लाल नेहरू कौन सी? अपने इंडिया सी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू।
दूसरा ਆਪਾਂ याद रखना है इन्हां दा होर की सी लॉन्गेस्ट टेन्योर, सब तो वड्डा कार्यकाल। सो सब तो वड्डा कार्यकाल भी किहदा सी? जवाहर लाल नेहरू दा। जवाहर लाल नेहरू जी की आप एक बुक याद रखनी है, बुक का नाम की है जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक भी आपां नूं पूछी जाती है, बुक भी आपां याद रखनी है। मुरारजी देसाई ते आपां नूं क्वेश्चन आंदा है, मुरारजी देसाई इज द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, भी इंडिया सब तो वध उम्र लई जिहड़े प्राइम मिनिस्टर बने सी वो कौन सी? मुरारजी देसाई। ते इंदिरा गांधी बारे आपां नूं याद आंदा है, ये कौन सी? फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी? इंदिरा गांधी। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा जी ए ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा। क्लियर है जी? चलो चलते फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन अपन की आया सी, कहंदे 111वां, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? पथराव विज्ञान, भूगोल विज्ञान, जीव विज्ञान या समाज विज्ञान। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। इसनों आपां कहने भूगोल विज्ञान, जोग्राफी। सो जोग्राफी की है? स्टडी ऑफ द अर्थ, है ना, अपनी पृथ्वी की स्टडी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लैंड, ਉਹਦੇ फीचर्स, इनहैबिटेंट्स, फिनोमिनास। सो हर चीज़ की स्टडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? जोग्राफी। ਤੇ जोग्राफी ਦੇ ਆਪਣੇ फादर कौन है? सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ जोग्राफी। सो फादर ऑफ जोग्राफी आप कह देने इरैथोस्थेनिस। सो इरैथोस्थेनिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह देने जी फादर ऑफ जोग्राफी, क्योंकि इन्होंने आपां नूं टिल्ट बारे दस्सिया सी, अपनी पृथ्वी के झुकाव बारे दस्सिया सी, है ना। दूसरा आपां नूं इन्होंने अपनी पृथ्वी का पैरीमीटर दसता सी, ठीक है, उस टाइम। सो इस करके जोग्राफी के फादर आपां कहने जी किनू? इरैथोस्थेनिस। पैलेंटोलॉजी हुंदा है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, है ना। फॉसिल्स की हुंदा है जिहड़े अवशेष हुंदे है, पुरानियां चीज़ां, उन्हां दी स्टडी नूं आपां पैलेंटोलॉजी कह दिंदे हैं। बायोलॉजी की हुंदा है जी? बायोलॉजी हुंदा है स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, स्टडी ऑफ लाइफ। ते बायोलॉजी दे भी आपां नूं फादर पूछे जांदे, फादर ऑफ बायोलॉजी। सो फादर ऑफ बायोलॉजी आपां किन्हां नूं कहने? एरिस्टोटल, अरस्तु नूं। अरस्तु कौन सी? अरस्तु अलैग्जैंडर है जिहड़ा सिकंदर है, सिकंदर दे गुरु भी सी अरस्तु, ठीक है। अलैग्जैंडर दे गुरु का नाम भी अरस्तु सी। अलैग्जैंडर दे पिता का नाम आपां नूं पुछ लैंदा है भी दसो इन्हां दे पिता, इन्हां दे पप्पा जी का नाम की सी? तो अलैग्जैंडर दे जिहड़े पप्पा जी सी उन्हां दा नाम सी फिलिप्स, ठीक है, ये भी आपां याद रखना है। अलैग्जैंडर दी 326 BC दे विच किहदे नाल लड़ाई हुई सी? पोरस दे नाल लड़ाई हुई सी। इस लड़ाई नूं आपां की कहने जी? बैटल ऑफ हाइदस्पस। हाइदस्पस किहड़ी नदी का नाम है? झेलम, ठीक है। झेलम नदी के किनारे इंडस वैली का मांडा साइट भी है। मांडा, मांडा किथे है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिए आर्टिकल किहड़ा है? 370। ते मांडा की सी? इहदी बिल्कुल नॉर्थ बाउंड्री सी इंडस वैली दी, है ना। जिथों मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कोई क्वेश्चन आप जान नहीं देवांगे, नहीं जान देवांगे ना। सो इंपॉर्टेंट, क्लियर है? सो अपना आंसर होगा जी बी ऑप्शन। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन अपना इस 112वां कहते सूरजी सिस्टम के तीसरे ग्रह केड़ा जी? लो जी तीजा ग्रह पूछ लिया, ले दस, ये भी पूछने वाली गल सी है। ऐदा दी चीज़ भी कोई पूछदा दसो? बहुत ईजी क्वेश्चन है ता, है ना। तीजा ग्रह पूछी जांदा जी आपां नूं, तीजा ग्रह दस दो फिर इन्हां नूं तीजा ग्रह केड़ा सी, है ना। सो ये अपना नक्शा है, देखो ये अपना सोलर सिस्टम है। सो तुहानूं दिख रहा होगा जी, है ना, दिख रहा है ना। सो ये अपना सूरज है, पहला ग्रह केड़ा है? मरकरी, दूसरा वीनस, तीजा केड़ा है? अपनी अर्थ, है ना। सो आंसर होगा अपनी धरती। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अर्थ, है ना। सो तीजा ग्रह केड़ा? अपनी पृथ्वी, अर्थ, ठीक है। हुण अर्थ नूं आपां होर की बोल दिंदे हैं? इहनूं आपां ब्लू प्लैनेट भी बोल दिंदे हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कह दिंदे हैं? बिकॉज मैक्सिमम इत्थे की है? पानी है ना, ज्यादातर इत्थे पानी है। वीनस जिहड़ा ग्रह है, वीनस ग्रह नूं आपां मॉर्निंग स्टार भी कह दिंदे,
ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਨਸ ਨੂੰ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਨਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜੁੜਵਾ ਅਰਥ ਟਵਿਨ, ਸੋ ਅਰਥ ਟਵਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਨਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ ਅਰਥ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਹੌਟੈਸਟ ਪਲੈਨਟ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟੈਸਟ ਪਲੈਨਟ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣਾ ਵੀਨਸ। ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀਨਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਨਸ ਤੇ। ਮਾਰਸ, ਮੰਗਲ, ਮੰਗਲ, ਸੋ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਡ ਪਲੈਨਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ, ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੈਨਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨੈਪਚੂਨ। ਆ ਪਿਆ ਨੈਪਚੂਨ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। क्लियर है? सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस है, सो आप सारा कुछ याद करना है। ठीक है जी, चलो सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन देखो की आया सी, द कहंदे अर्थ हैज ए एक्सियल टिल्ट, इथे आपां नूं एक्सियल टिल्ट दिता है। ठीक है, एक्सियल टिल्ट दिता कितना है? 23.4 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की है? दिस मीनस दैट कहंदे धरती अपनी दूरी दे आले दुआले, धूरी दे आले दुआले घूमदी है, गलत है। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਲ ਟਿਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ? 23.4 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ the hemispheres of the earth are exposed to the sun for different time during a year। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ, ਤੇ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the greatest impact on the environment of earth has been from। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰੋਪੋਜੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 115ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ।
अगला क्वेश्चन देखो 116वां क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ क्वेश्चन ਕੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੱਧ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। क्लास ਆਪਾਂ बहुत बार डिस्कस करते हैं भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, उस करके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। ओजोन परत है जी अपनी टुट रही है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लेशियर जो है घट रहे हैं, रिट्रीट हो रहा है ना, सो घटन लई रिट्रीट। चलो क्लियर है जी। अगला देखते हैं जी 117वां अपन क्वेश्चन आया सी, कहते रणजीत सागर बन या डैम इस पिंड के नेड़े स्थित। सो रणजीत सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जिहड़ा रणजीत सागर डैम है ये अपना पठानकोट दे विच, पठानकोट ते पठानकोट दे विच रावी नदी ते बनया हुआ है, ठीक है। हुण जिहड़ा रणजीत सागर डैम है ये अपने इंडिया का हाईएस्ट अर्थफिल डैम भी है। अर्थफिल देखो जे तुहानूं क्वेश्चन आवे भी इंडिया का सब तो हाईएस्ट डैम किहड़ा है, वो डैम अपना किहड़ा हुंदा है, कंक्रीट का, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो उत्थे आपां आंसर की लगावांगे, टेहरी डैम, ठीक है। टेहरी डैम, टेहरी डैम कित्थे है जी, उत्तराखंड दे विच, ठीक है। इंडिया का सब तो हाईएस्ट डैम है। लेकिन जे तुहाडे कोल अर्थ आवे, अर्थ मतलब मिट्टी, है ना, भी मिट्टी का बनिया ये डैम है इंडिया सब तो हाईएस्ट, तो तुसीं की आंसर लगाना है, रणजीत सागर डैम, ठीक है जी। सो रणजीत सागर डैम कित्थे है, पठानकोट दे विच रावी नदी ते बने। सो कहते किहड़े पिंड दे किनारे है, सो किहड़े पिंड दे विच है, वो पिंड किहड़ा है जी, थीन। सो थीन एक पिंड दा नाम है उत्थे। सो इसे करके रणजीत सागर डैम नूं आपां थीन डैम भी कह दिंदे हैं। सो इंपॉर्टेंट है, रणजीत सागर डैम नूं थीन डैम भी कह दिंदे हैं क्योंकि ये थीन पिंड दे विच। क्लीयर है। सो अपना आंसर होगा जी सेकंड ऑप्शन। क्लियर है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ते। लो सो अगला क्वेश्चन तो वही आ गया। सो कहते भारत विच उच्चतम मिट्टी पूरित बन है, सो हाईएस्ट अर्थफिल्ड डैम। सो हुणी आपां गल कीती है, सो इहदा आंसर की होगा, रणजीत सागर डैम। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रणजीत सागर डैम। सो रणजीत सागर डैम बारे आपां की पढ़िया, ये डैम कित्थे है, पठानकोट दे विच है, ठीक है। किहड़ी नदी ते बने, रावी नदी ते बने रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम नूं आपां होर की कह दिंदे हैं, इहनूं आपां थीन डैम भी कह दिंदे हैं। टेहरी डैम बारे आपां की पढ़िया सी, टेहरी डैम की इंडिया का हाईएस्ट डैम, ते टेहरी डैम कित्थे है जी, उत्तराखंड दे विच है। ते टेहरी डैम किहड़ी नदी ते बने, उह नदी का नाम है जी भागीरथी नदी। सो भागीरथी नदी ते डैम बने टेहरी डैम, इंपॉर्टेंट है। बाखड़ा डैम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हीराकुड डैम है ये इंडिया का सब तो लॉन्गेस्ट डैम है। सो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इनू कह सकते हैं, ये इंडिया के सब तो लार्जेस्ट डैम कह सकते हैं। वो किहड़ा जी, हीराकुड डैम। सो हीराकुड डैम कित्थे है, ये है जी अपनी उड़ीसा दे विच। तो उड़ीसा दे विच किहड़ी नदी ते बनिया है, नदी का नाम है जी महानदी, ठीक है जी। महानदी की आपां नूं लेंथ पूछी जाती है 857 किलोमीटर। महानदी कित्थों निकलती है, ये निकलती है जी दंडक अरण्यक। दंडक अरण्यक कित्थे है, ये छत्तीसगढ़ च। सो छत्तीसगढ़ दे विचों निकलती है, छत्तीसगढ़ चों निकल के कित्थे जाती है, उड़ीसा च जाती है। उड़ीसा च इत्थे डैम बने, उड़ीसा तो बाद गिर जाती है बंगाल की खाड़ी च, बे ऑफ बंगाल दे विच। किहड़ी नदी, महानदी, ठीक है। तो दंडक अरण्यक जिहड़ा वर्ड है जिथों निकलती है, दंडक अरण्यक का मतलब यही होंदा है भी घने जंगल, छत्तीसगढ़ के घने जंगल चों निकलती है नदी। सो आप याद रखने। सो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ते। सो अगला क्वेश्चन देखो अपन की आया सी। सो अगला क्वेश्चन आया सी, कहते उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत विच खंड के उत्पादन विच तेजी नाल वाधे लई हेठ दिखे कारकां विचों किहड़ा कारक जिम्मेवार। सो कहते उत्तर भारत दे विच तां चलो अपने कोल गन्ना या फिर खंड हैगा ही है,
पर कहते दक्षिण भारत दे विच भी इहदी प्रोडक्शन वध रही है, क्यों वध रही है? पहला की कहते गन्ने दी प्रति एकड़ उच्चतर उपज, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा की कहते हैं गन्ने दी उच्चतर खंड मात्रा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा कहते घट मजदूरी दी लागत, नहीं ये गलत है, मजदूरी बारे आपां कोई गल नहीं करनी। चौथा की है पिड़ाई दी लंबी म्याद, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो पहला दूसरा ते चौथा ऑप्शन ठीक है, ये अपने कोल कित्थे पे है? बी ऑप्शन दे विच। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि देखो भी हाई पर एकड़ फील्ड है शुगर केन दी, सही है। हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट भी है शुगर केन, सही है। लो लेबर कॉस्ट गलत है, लेकिन लॉन्गर क्रशिंग पीरियड सही है। सो पहली दूसरी ऑप्शन चौथी सही है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपां किहदी गल कर रहे हैं? शुगर दी, मिठे दी, ठीक है जी, शुगर। ते शुगर केन सब तो ज्यादा इंडिया च कित्थे हुंदा है? यूपी दे विच, यूपी दे विच। ते यूपी दी कैपिटल की है जी? लखनऊ। लखनऊ किहड़ी नदी दे किनारे है? गोमती नदी। लखनऊ नूं आपां होर की बोलदे हैं? सिटी ऑफ नवाब्स। सो नवाबां दा शहर किहनूं कहंदे जी? लखनऊ नूं। यूपी दा पुराना नाम की सी? इहनूं पहला यूनाइटेड प्रोविंस भी कह दिंदे सी, ठीक है। ते यूपी दे विच अज अपने इंडिया दी की है? मैक्सिमम पॉपुलेशन। सो सब तो ज्यादा जनसंख्या भी कित्थे है? यूपी च। क्लियर है जी? सो अपना आंसर होगा जी सेकंड ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला अपन क्वेश्चन आया सी, कहंदे भारत एक बड़ा देश है। हाँ जी, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा देश है। सो कहंदे धरती दे किन्ने खेतर नूं कवर करदा है? सो धरती दा अपना कवर करदा है जी 2.4% भारत, है ना, एरिया, है ना। सो सब तो ज्यादा एरिया तो अपने कोल किहड़े देश है? रशिया। दूसरे नंबर ते सब तो ज्यादा किहदे कोल एरिया? कनेडा। तीसरे नंबर ते किहदे कोल है जी? चाइना। चौथे नंबर ते किहदे कोल है जी? अमरीका। पंजवें नंबर ते किहदे कोल है जी? ब्राजील। छेवें नंबर ते किहदे कोल है जी? आस्ट्रेलिया। सतवें नंबर ते आ जांदा है अपना प्यारा भारत। सो इंडिया की है, आप याद रखना है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार से 7वें नंबर ते सब तो वड्डा जिहड़ा अपना देश है वो किहड़ा जी? इंडिया, ठीक है। सो पहले नंबर ते रशिया, दूसरे ते कनेडा, तीसरे ते चाइना, चौथे ते अमरीका, पंजे ते ब्राजील, छेवें ते आस्ट्रेलिया, सतवें ते इंडिया। सारे आप याद रखने हैं। रशिया की कैपिटल की है जी? राजधानियां भी याद रखनी है, ठीक है जी, है ना। सो फिर कहोगे भी राजधानियां याद नहीं होंदियां, ठीक है। किहड़े बादाम खाने चाहिए, किहड़े काजू खाने चाहिए, फिर तुसीं ऐ पुछदे हो, ये आप वैसे ही याद रखनी है। सो रशिया की कैपिटल है जी मॉस्को, कैनेडा की कैपिटल है जी ओटावा, चाइना की कैपिटल है जी बीजिंग, अमेरिका की कैपिटल है जी वाशिंगटन डीसी, है ना। ते ब्राजील की कैपिटल है जी ब्राजीलिया, आस्ट्रेलिया की कैपिटल है जी कैनबेरा। ते कई अपने महापुरुष है जिन्होंने इंडिया की कैपिटल भी नहीं पता होंदा, विच ही चंडीगढ़ वारी जांदे, विच ही लखनऊ कलकत्ता वाड़ी जांदे। सो भी महापुरुष सुन लो भी इंडिया की कैपिटल की है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। क्लियर है? सो याद रख। सो डी ऑप्शन इहदा करेक्ट आंसर होगा 2.4%। सो अगला क्वेश्चन अपन नूं आया सी, कहंदे जिहड़ी रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन किहड़े देशां दी सीमा बनाउंदी है? सो पहली ऑप्शन की है? भारत पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है जी। सो इंडिया ते पाकिस्तान च जिहड़ी बाउंड्री लाइन है उहदा नाम की है? रेड क्लिफ लाइन, ये आपां नूं पता है। भारत ते चाइना की जिहड़ी बाउंड्री लाइन है इहदा की नाम है जी? इहदा नाम है जी अपना मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। भारत ते मियांमार की कोई बाउंड्री नहीं है, भारत ते अफगानिस्तान की भी नहीं है ना, भारत ते अफगानिस्तान की नहीं है, पर अफगानिस्तान ते पाकिस्तान की है। सो अपने ये पूछ लेंदे भी पाकिस्तान ते अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन का नाम की है? उहदा नाम है जी ड्यूरांड लाइन, ड्यूरांड लाइन। क्लियर है? बाकी आप पढ़ते हैं कैपिटल्स। पाकिस्तान की कैपिटल की है जी? इस्लामाबाद, है ना, तुहाडा आ गया देश। चाइना की कैपिटल है जी बीजिंग, म्यांमार की कैपिटल है जी नेपीता, नेपीता। अफगानिस्तान की कैपिटल है जी काबुल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है, याद रखने हैं अफगानिस्तान। क्लियर है? सो अपना आंसर होगा जी ए ऑप्शन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन।
क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ मर्दशुमारी, चलो आप इंग्लिश ही पढ़ते हैं। आफ्टर विच सेंसस वॉज इट डिस्कवर्ड दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट। सो केड़े सेंसस तो बाद पता लग गया भी भारत की आबादी है कहते बिल्कुल तेजी दे नाल वध रही है। सो ऑप्शंस की सी 21, 31, 51, 1901। सो अपना करैक्ट आंसर की है जी 1921। सो 1921 के सेंसस तो बाद अपन पता चलिया भी भारत की जिहड़ी आबादी है वो एकदम वध रही है। क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला अपन क्वेश्चन आया सी जी 123वां, कहंदे भारत केसर दा भारत विच उत्पादन कित्थे हुंदा है। सो केसर, ठीक है, केसर दा उत्पादन कित्थे हुंदा है। असम, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर। सो बहुत बारी आपां पढ़िया जी, इहदा आंसर की होगा जी डी ऑप्शन, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी। सो मैप च भी देख लो है ना, क्योंकि आपां मैप च भी पढ़िया सी। सो मैप च आपां कसम भी खाधी सी है ना, भी आपां इहनूं याद रखांगे। क्यों, देखो ये की अपना जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर। ते जदों आपां कसम खाने सो आपां सिर ते हत्थ रख के खाने ना। सो आपां जम्मू एंड कश्मीर के सर की कसम खा के कही सी कि केसर कित्थे हुंदा है, जम्मू कश्मीर च हुंदा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के सर की कसम, केसर सब तो ज्यादा कित्थे हुंदा है ना, सिर ते हत्थ रख के आपां कहा सी कित्थे हुंदा है केसर है ना, जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर दी अपनी कैपिटल की है, दो कैपिटल है जी, एक भी नहीं है। एक है जी जम्मू विंटर है, दूसरी किहड़ी है श्रीनगर। अच्छा पश्चिम बंगाल च की हुंदा है। सो पश्चिमी बंगाल दे विच सब तो ज्यादा हुंदा है जी जूट, पटसन, ये भी याद रखना है, सब तो ज्यादा हुंदा है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल दी अपनी कैपिटल है जी कोलकाता। कोलकाता किहड़ी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, कोलकाता नूं आपां होर की बोलदे हैं, सिटी ऑफ पैलेसिस। इहनूं आपां होर की कहने हैं, सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ पैलेसिस भी कहने हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहने हैं। गुजरात, गुजरात दे विच लसन सब तो ज्यादा हुंदा है जी, लहसुन, लहसुन। ठीक है, सो लहसुन सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है जी गांधीनगर। गांधीनगर, गांधीनगर किहड़ी नदी के किनारे है, साबरमती। असम की कैपिटल की है जी दिसपुर। ठीक है, चल क्लियर है जी। सो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ते, देखते हैं अगला क्वेश्चन की है। सो अगला अपन क्वेश्चन है 124वां, कहंदे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील खेतर तो भारत दियां हेठ लिखियां नदियां निकलदी हैं। सो मानसरोवर झील चों किहड़ी नदी निकलदी है, ब्रह्मपुत्रा निकलदी है, सतलुज निकलदी है, ठीक है, यमुना नहीं, पहली गलत हो गई। ब्रह्मपुत्रा निकलदी है, इंडस निकलदी है, सतलुज, हाँ जी। सो दूसरी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो ब्रह्मपुत्रा भी निकलदी है, सिंध भी निकलदी है, सतलुज भी निकलदी है मानसरोवर लेक तो। सो अपना आंसर होगा जी बी ऑप्शन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ किनारे शहर पूछे जाते ਕਿਹੜੇ है। सो एक तो है गुवाहाटी, दूसरा आप शहर याद रखना है डिब्रूगढ़। सो गुवाहाटी ते डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। इंडस अपनी सिंधु नदी जिहदे किनारे सभ्यता फैली। सतलुज जिहड़ी है, सतलुज नूं आपां होर की बोल दिंदे हैं, इहनूं आपां बोल दिंदे हैं बैकबोन ऑफ पंजाब। बैकबोन ऑफ पंजाब ही बोल देने सतलुज नूं, क्योंकि सतलुज नदी के किनारे है ना पंजाब के दो शहर है, एक आप याद रखना है लुधियाना, तो दूसरा आप याद रखना है अपना फिरोजपुर। इस सतलुज नदी के किनारे लुधियाना नूं आपां होर की बोलदे, इहनूं आपां बोलदे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब है ना। फिरोजपुर शहर किन्ने बनवाया सी, ये बनाया सी अपना फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक है ना। लुधियाना दे विच इंडिया दी पंजाब दी मैक्सिमम पॉपुलेशन भी है। लुधियाना दी पंजाब दे विच मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी भी है ना लुधियाना दे विच। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लुधियाना किन्ना ने बसाया सी, लोधियां ने बसाया सी, लोधी वंश के राजा ने बसाया सी। क्लियर है। सो आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी 125वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन आया सी,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜौ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਚੌਲ। ਚੌਲ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆंसर होगा जी चौल। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइस है ना। सो गल की है सब तो ज्यादा राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस है ना, राइस बॉल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश। सो गल की है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो जी, अगला क्वेश्चन आया सी करंट लोक सभा है ना। सो आपां नूं फिलहाल जिहड़ी लोक सभा चल रही सी वो पुछया सी। सो उस टाइम जिहड़ी चल रही सी आपां वो तां चलो हुण की आंसर देना है। सो हुण जिहड़ी लोक सभा चल रही है उसदा आंसर याद रखना है तुसीं। हुण कितनी लोक सभा चल रही है, 17th लोक सभा, ठीक है जी। ते लोक सभा नूं आपां होर की बोलदे हैं, लोक सभा नूं आपां लोअर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट भी कह दिंदे हैं। लोक सभा नूं आपां पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट भी कह दिंदे हैं। लोक सभा नूं आपां टैंपरेरी हाउस ऑफ द पार्लीमेंट भी कह दिंदे हैं, ठीक है जी। सो ये सारा कुछ पूछा जाता आपां नूं लोक सभा पर। सो हुण कितनी चल रही है याद रखना है, 17th लोक सभा चल रही है जिहदे अपने स्पीकर कौन है। सो हुण अपने लोक सभा दे स्पीकर कौन है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन है ओम बिरला, ठीक है जी। सो आंसर होगा 17th। नैक्सट देखते हैं, अगला अपन क्वेश्चन आया सी जी, कहते ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ 3 ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, USA। ਤੇ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 6। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 7। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਚੋਂ, ਉਹ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆंसर होगा अपना बी ऑप्शन। हाँ जी, सो चलते नैक्सट क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन अपन आया सी जायदाद का अधिकार है। सो हुणे आपां पढ़िया भी जायदाद का अधिकार अपना फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बल्कि इनू एक आपां हुण की बनाता, कानूनी अधिकार बनाता, लीगल राइट बनाता, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी पहला आर्टिकल 31 हुंदा सी, लेकिन आर्टिकल 31 हुण की करता आपां संविधान चों खत्म करता, ठीक है। सो इनू हुण कानूनी अधिकार बनाता, उहदे लई आपां देता आर्टिकल 300A, ये भी आपां याद रख। क्लियर है, राइट टू प्रॉपर्टी। अगला देखो 29वां 129वां क्वेश्चन सी, कहंदे जेपीसी की हुंदा है इंडियन पार्लीमेंट दे विच, ठीक है। सो जेपीसी दा मतलब की हुंदा अपनी पार्लीमेंट दे विच, आपां ये दसना है, ठीक है जी। सो आपां जस्ट इहदे विच फुल फॉर्म याद रखनी है। जेपीसी दा मतलब हुंदा जी जॉइंट पार्लीमेंटरी कमेटी। सो सी ऑप्शन इहदा करेक्ट आंसर सी। अगला अपन क्वेश्चन सी, कहते धारा 370 है ना, किहदे नाल डील करदी है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 370 ये अपन सारे पता ही है जी, ये किहदे नाल रिलेटेड है जी, जम्मू एंड कश्मीर दे नाल। लेकिन हुण वैसे आपां इस धारा नूं हुण खत्म करता है ना, हुण आपां इस धारा नूं खत्म करता आर्टिकल 370, पर पहले किहदे लई बनी सी, जम्मू एंड कश्मीर दे लई बनी सी। क्लीयर है। कैपिटल आपां पढ़ ली सी, तमिलनाडु दी कैपिटल है जी चेन्नई, झारखंड की कैपिटल है जी रांची, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है जी शिमला। अगला क्वेश्चन सी लोक अदालत। सो कहते लोक अदालत किहदे लई हुंदी है। हाँ जी, सो पढ़ो ऑप्शंस।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈਆਂ। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की सी? सो अगला क्वेश्चन अपन आया सी, कहते भारत के लोगों की भाषाई प्रांतां विच वंड इस सिद्धांत ते आधारित है। सो भाषाई प्रांतां दे विच वंड किस सिद्धांत ते आधारित है? पहला की कहते लोगों को उन्होंने भाषा विच प्रशासन प्रदान करना अपने आप विच एक चंगी गल है। हाँ जी, चंगी गल है जी, बहुत चंगी गल है। अगला की है स्थानक भाषावां की वरतों करना प्रशासन नूं सौखा बनाउंदा है। बिल्कुल ठीक है। भाषा एक महत्वपूर्ण बंधन है जिसकी लोगों को जोड़ती है ते उन्हां लई एक पछाण बनाउंदी है। बिल्कुल ठीक है। सो सारी ऑप्शनस ही ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है सारे, है ना। सो अपन नूं क्वेश्चन आंदा है भी इंडिया दी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट किहड़ी सी? लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब यह होंदा है भी भाषा के आधार पर बनने वाली पहली स्टेट, भाषा के आधार पर बनन वाला जिहड़ा अपना पहला राज सी वो किहड़ा सी? सो पहला राज जिहड़ा सीगा अपना वो सी आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज बनया सी। ये कदों बनया सी? 1953 दे विच। ते आंध्र प्रदेश की अज अपनी कैपिटल की है जी? अमरावती। ते अमरावती अपनी किहड़ी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। ते कृष्णा नदी ते एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी बने, उसका नाम है नाग अर्जुन सागर डैम। तो डैम भी अपन पूछ लेंगे भी नाग अर्जुन सागर डैम किहड़ी नदी ते बने? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे किहड़ा शहर है? अमरावती। अमरावती की कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। क्लियर है? सो आंसर होगा अपना ये सारे, बी ऑप्शन। नैक्सट देखो जी, अगला क्वेश्चन अपन आया सी, कहते रोजी कमाना की है? सो रोजी कमाना सरकार वालों सानू दिता गया एक अधिकार है? नहीं। एक ब्रह्म अधिकार है? नहीं जी नहीं। अदालत वालों सानू दिता गया एक अधिकार है? नहीं। ये अपने एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल ठीक है। सो अपना एक फंडामेंटल राइट अपनी रोजी रोटी कमाना। सो आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन की आया सी अपन नूं 134वां। सो कहते टैक्सां राही सरकार वालों प्राप्त किए सारे मालीए जिमें कि आमदन कर, केंद्रीय आबकारी, चुंगी, मालगुजारी, टैक्स मालिया आदि के रूप दे विच सरकार वालों प्राप्त किए सारे मालीए की बनाउंदे? सो सारे जिहड़े टैक्स बनते इन्हां नूं आपां कहने आ कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन, भारत का एकीकृत फंड। ठीक है जी, कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनू संचित फंड भी कह देंगे पंजाबी च आपां इनू संचित सूची या संचित फंड भी कह देंगे, ये भी आपां याद। क्लियर है जी। अगला अपन क्वेश्चन आया सी, कहते पार्लीमेंटरी सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो भारत में संसदीय प्रधानी किस सिद्धांत ते आधारित है? बहुगिनती बोर्ड की चोन प्रणाली। बिल्कुल ठीक है जी, है ना। जिन्हों बहुगिनती दे विच वोट मिलते हैं उही चुनिया जाता, उही अपनी सरकार बनाते हैं। सो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इनू आप बोलते हैं प्रिंसिपल है। ठीक है, अपनी पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सो अपन क्वेश्चन आता है भी आप पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसैप्ट किहड़े देश तो लिया सी? यूके, है ना। यूके तो, यूके की कैपिटल की है जी? लंडन। लंडन किहड़ी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूके तो आप होर किहड़ा कंसैप्ट लिया सी? सिंगल सिटीजनशिप का कंसैप्ट भी लिया सी, एकल नागरिकता का कंसैप्ट भी यूके तो आप लिया सी। क्लियर है? चलो सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन की आया सी, प्रसार भारती की है? सो प्रसार भारती की है? भारत का जनतक सेवा प्रसारक। सो पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये अपने इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इंडिया का प्रसार भारती, है ना। सो जिन्हों हुण आपां AIR भी बोल देने। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रूडियो, है ना। रेडियो बोलते हैं ना, ऑल इंडिया रेडियो। सो रेडियो की खोज किन्ने की सी? ये भी आप याद रखना है, मार्कोनी। ठीक है जी, रेडियो की खोज किन्ने की सी? मार्कोनी। ठीक है, कोनी मारनी है, कोनी मार के रेडियो चलाना है, याद रखना है। रेडियो की खोज की सी। रेडियो डे भी मनाया जाता है इंडिया च, रेडियो की याद लियो मनाया जाता है 13 फरवरी को रेडियो डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
रेडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FM FM ਰੇਡੀਓ FM ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ FM ਰੇਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CCTV ਹੈ ਨਾ CCTV ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ है ना जिन्हों आप कहने ऊपर वाला सब देख रहा है CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन NGO की फुल फॉर्म होती है जी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो प्रसार भारती की अपना जनतक सेवा प्रसारक है ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं अगला क्वेश्चन अपन की आया सी कहंदे नारीवाद इस दा हवाला दिंदा नारीवाद की कहंदा ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਕੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਟ ਪਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 138ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ राष्ट्रपति सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर है ना अगला भी क्वेश्चन बहुत इजी आया सी जी कहते भारत विच फौज का सुप्रीम कमांडर कौन है सो अपना सुप्रीम कमांडर कौन होंगे मिलिटरी फोर्सेस का ये भी कौन होंगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है ना सो हुण अपने देश के राष्ट्रपति कौन है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे सो ये है जी द्रौपदी मुर्मू है ना सो द्रौपदी मुर्मू ये अपने हुण देश की राष्ट्रपति है जो कि अपने इंडिया की सैकेंड वुमेन प्रेसिडेंट भी है ना ते फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी इंडिया की इन्हां दा नाम सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ठीक है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्लियर है जी हाँ जी सो अगला क्वेश्चन अपन आया 140वां कहते नागरिक अधिकारां की सुरक्षा एक्ट नूं इस लई तैयार किया गया सो नागरिक अधिकारां की सुरक्षा एक्ट नूं किस लई तैयार किया गया कहते व्यक्तियों के नागरिक अधिकारां की रक्षा करने लई नहीं गलत है छूआछूत के व्यवहार लई सजा निश्चित कर हाँ जी सो बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सो जिहड़ा अधिकार आया सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ए पनिशमेंट देने लिए आया सी अनटचेबिलिटी के खिलाफ है ना सो छूआछूत के व्यवहार लिए सजा निश्चित करने लिए बनाया गया सी सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर तो वैसे भी अपने संविधान दे विच आर्टिकल जिहड़ा 17 है आर्टिकल 17 की कहता है ये खत्म करता है अनटचेबिलिटी अबॉलिश अनटचेबिलिटी छूआछूत ते रोक लगांदा है किहड़ा आर्टिकल 17 सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन बहुत ईजी आया सी जी समाजिक विज्ञान अध्ययन करते हैं सो समाजिक विज्ञान दे विच आपां किहदे बारे पढ़ते हैं तो समाज दे विच ही पढ़ते हैं ना समाज बारे पढ़ते हैं सो सोसाइटीज बारे पढ़ते हैं सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगला अपन क्वेश्चन आया सी कहंदे जिथे मन डर तो रहित है ये किस दी लाइनां सी कहंदे मन है जिहड़ा अपना डर तो रहित है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये लाइन्स किन्हां ने लिखियां सी महात्मा गांधी नहीं विवेकानंद नहीं रविंद्रनाथ टैगोर सो आंसर होगा अपना सी ऑप्शन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सो उन्होंने लाइन लिखी सी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर सो रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज जिन्होंने नोबल प्राइज मिले कि लिटरेचर साहित्य वो कौन सी अपने रविंद्रनाथ टैगोर सरदार भगत सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी सी वो याद रखना है बुक का नाम है वाई आई एम अथीस्ट ये बुक लिखी सी भगत सिंह ने अच्छा जेडे रविंद्रनाथ टैगोर नूं नोबल प्राइज मिलिया सी लिटरेचर वो किहड़ी बुक लई मिलिया सी वो बुक का नाम सी गीतांजलि ठीक है गीतांजलि बुक लई मिलिया सी लेकिन इन्होंने एक गोरा बुक भी लिखी सी काबुली वाला बुक भी लिखी सी ये भी आप याद रखना है स्वामी विवेकानंद इन्हां दा आपां नूं रियल नेम पूछा जांदा है स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम की सी नरेंद्र नाथ दत्त
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਕਥਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਸੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੁਥ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्लियर है। सो ये सारिया चीज़ां आप याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है जी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उस तो बाद अपने SST दे पैडागोजी के क्वेश्चन सी, उन्होंने भी कुछ आप देख लेने। सो अपना 143वां क्वेश्चन आया सी, समाजिक विज्ञान नूं पढ़ाउण विच जटिलता दा एक हिस्सा इस तत्व विच भी है कि उन्हां दा विषय की है। ठीक है। So part of the complexity in teaching social science lies in the fact that भी ये जेड़ा subject है SS है ना social science, यह की है हमेशा परिवर्तनशील है, बहुत गुंझलदार है, गैर मौजूद है, स्थानक है। सो गुंझलदार तो कुछ भी नहीं है ना, टीचर चंगा होवे है ना, कोई टीचर बहुत वधिया पढ़ाउंदे है। गैर मौजूद भी नहीं है, स्थानक भी नहीं है, बस थोड़ा जाए की है हमेशा परिवर्तनशील है, बदल रहा है ना, एवर चेंजिंग। सो इसे करके थोड़ा कंपलैक्स बन जाता है सोशल साइंस। क्लियर है। सो ये थोड़े पैडागोजी के क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना है। सॉरी। अगला अपन क्वेश्चन आया सी 144वां, एक बच्चे की सिक्ख्या हुंदी है, एक बच्चे की सिक्ख्या किवें मिलती है? घर स्कूल ते समाज, तिन्हां चों स्कूल समाज घर। हाँ जी, ये तो आपां नूं पता ही है जी। सो ये आंसर होगा, स्कूल चों भी मिलती है, घर चों भी मिलती है, सोसाइटी तो भी मिलती है। सो घर समाज ते स्कूल तिन्हां तो ही बच्चे की सिक्ख्या कंप्लीट है जिहड़ी ओह हुंदी। क्लीयर है जी। अगला क्वेश्चन आपां नूं आया सी 145वां, एक अध्यापक नूं इस दे अनुकूलित होना चाहिए। सो कहंदे टीचर नूं की होना चाहिए? अदाकारी, भी टीचर नूं एक्टिंग आंदी होवे, नहीं। लर्निंग, सिक्ख्या प्राप्ति, नहीं। संचार, नहीं। बहुपक्षी भूमिकावां, हाँ जी। सो बहुपक्षी भूमिकावां निभाना आना चाहिए। प्लेइंग मल्टीपल रोल्स है ना, सो मल्टीपल रोल्स नूं प्ले करने आने चाहिए एक टीचर नूं। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन अपन की आया सी, सो अगला क्वेश्चन अपन आया सी 146वां, ये की कहंदे हैं? कहंदे प्राइमरी ते सैकेंडरी स्रोत दे विच अंतर ये है। की अंतर है? भी प्राइमरी स्रोत प्राइमरी हुंदा है, सैकेंडरी सैकेंडरी हुंदा है, नहीं। आ थोड़ी गल हुई। सो कहंदे एक सैकेंडरी स्रोत अध्ययन किते जा रहे व्यक्ति, जानकारी, न्याजा, विचार दे सब दे नेड़े हुंदा है, नहीं। प्राइमरी स्रोत अध्ययन किते जा रहे व्यक्ति, जानकारी, म्याद, हाँ। सो जेड़ा किसे अध्ययन किते जा रहे व्यक्ति, जानकारी, म्याद ਜਾਂ विचार दे सब दे नेड़े हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ प्राइमरी स्रोत कह दिंदे हैं। सो इसदा आंसर की होगा अपना सी ऑप्शन, दैट इज ए प्राइमरी सोर्स इज क्लोजेस्ट टू द पर्सन, इंफॉर्मेशन, पीरियड एंड आइडिया बीइंग स्टडीड। सो यही मेन डिफरेंस हुंदा है प्राइमरी ते सैकेंडरी सोर्सेस दे विच। सो इसदा आंसर होगा अपना सी ऑप्शन। हाँ जी, ते देखते हैं फिर आपां नूं अगला क्वेश्चन की आया सी। सो अगला क्वेश्चन अपन आया सी 147, कहंदे प्रोजेक्ट दा काम महत्वपूर्ण है क्योंकि, है ना, भी प्रोजेक्ट देना बच्चे नूं क्यों महत्वपूर्ण है? कहंदे यह सिख्यार्थियों नूं रचनात्मक बनाउण दे योग बनाउंदा है। ठीक है, चलो अगे देखते हैं। ये सिख्यार्थियों के लिए कुछ काम बनाउंदा है, नहीं, ये तो गलत है। करके सीखना वधेरे स्थाई सिख है, हाँ जी। सो वेरी गुड। ये अध्यापकों नूं रचनात्मक, नहीं, अध्यापकों की गल नहीं हो रही। सो सी ऑप्शन आंसर होगा करके सीखना। आप कहने ना लर्निंग बाय डूइंग, है ना। सो पूरी साइको दे विच आपां इसे फिनोमिना ते चलदे हैं, लर्निंग बाय डूइंग। सो आपां पहले चैप्टर 'च ये चीज़ां ही पढ़ते हैं। सो लर्निंग बाय डूइंग इज मोर लास्टिंग इन लर्निंग, है ना। सो इसे करके प्रोजेक्ट वर्क नूं इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है, क्योंकि जे आपां कोई चीज़ नूं करदे करदे सीखते हैं, बच्चा किस चीज़ नूं करदे करदे सीखता है तो उन्होंने लंबे समय लिए ज़्यादा देर लिए वो याद कर सकता। सो आंसर होगा जी अपना सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपन आया सी, क्लासरूम टीचिंग शुड बी, कहंदे जमात विच अध्यापन किस तरीके का होना चाहिए? क्लासरूम टीचिंग इंटेंस होना चाहिए, तेज, नहीं, इंटेंस वाली कोई गल नहीं है। वन साइडेड, नहीं, वन साइडेड तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इंटरेक्टिव, हाँ जी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इंटरेक्टिव।
यानी कि परस्पर क्रियात्मक है ना, इंटरेक्शन होनी चाहिए है टीचर्स की बच्चों नाल, बच्चों की टीचर्स के नाल इंटरेक्शन होनी चाहिए है। ईजी भी नहीं होना चाहिए, जे ईजी होगा तो की होगा, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ है ना, क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਣਗੇ। सो क्लासरूम टीचिंग हमेशा इंटरैक्टिव होनी चाहिए है। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं की है। अगला क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक फुल फॉर्म ही आई सी, डीपीआई ਦੀ ਆਪਾਂ फुल फॉर्म ਦੱਸਣੀ ਸੀ, बस डीपीआई ਦੀ फुल फॉर्म की है। सो डीपीआई ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फुल फॉर्म है डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ऐदा दी फुल फॉर्म्स भी कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। सो टीचिंग टेक्नीक इन द सोशल साइंस वुड इंक्लूड है ना, वुड इन्वॉल्व। सो SST ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਲ ਪਲੇਇੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, प्रोजेक्ट देना हो सकता है, लैक्चर देना हो सकता है। सो सारे ही हो सकते हैं। सो इस करके अपना आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ए सारे, ठीक है जी। सो अपना आंसर होगा जी ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। सो ये सी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप डिस्कस किए अपने पीटेड दे सैकेंड पेपर दे इंपॉर्टेंट SST दे 60 क्वेश्चंस, ठीक है जी। सो उम्मीद करदा तुहानू सारिआं नू सैशन समझ आया होगा, अच्छे तरीके नाल तुसी क्लास नू समझिया, क्लास लगाई है ना, तो जो भी चीज़ां मैं तुहानू दसियां वो नाल नाल तुसी नोट जरूर कीतियां होणगियां ते इन्हां चीज़ां नू तुसी जरूर अपना रिवाइज करोगे ते आने वाले पेपरां दे लई भी ये चीज़ां तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहणगियां, ठीक है जी। सो मेरा नाम है जी मोहित ढींगरा, आज लिए इन्ना ही करते हैं। सो मिलते हैं अपने फिर नैक्सट क्लास दे विच। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लैस यू ऑल।